अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे and I'll be dealing a specific session today which is all about the warfare industries across the globe which are being run by the developed countries, either by the developed countries or by the aristocrats, the capitalist structure to loot and plunder the wealth of the developing and the poor countries. We have glaring examples from recent past, either in the Middle East or in Eastern Ukraine, Eastern Europe. The US and the Western allies bear a very horrific history of intervention. Since so far, America has intervened in other countries in their sovereignties for 94 times. They have crossed and violated the international rules. Now the subject of the day would be about the Iranian drone used by Russia against Ukraine in their war, and Iran is accused of providing a bulk of nefarious drones to Russia in killing the Ukrainian masses. I'll trace back whether Iran is deliberately giving them, supplying these weaponry and arsenals during the war, or they decided it earlier or provided before the Russia-Ukraine war. And secondly, the advancement of Iranian technology in their nanotechnology, especially they have become the drone hub in the Middle East. They are gaining enormous value and potential using its guerrillas, proxy wars with their guerrillas and fighters, providing them sophisticated war. Even a big power, Russia is said to be the biggest power in the region, is lending Iran to provide its fatal drones, and America has accused Iran. And we will talk in detail why Iran has become so a gazing point for the West. And secondly, why the nefarious designers, developed countries, do not restrict themselves from achieving such sort of nuclear warheads and missiles and intercontinental ballistic missiles, and they only blame the other countries who want to progress, who want to have a say in international affairs. And thirdly, we'll be discussing the repercussions of these wars and the designs and the American strategy of New World Order in detail. तो इससे पहले हमारे न्यू ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मस्त खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें. So let's move towards the story again. हम बताएंगे आज कि ईरान और रशिया के बीच गुर्बतें वो पहले से ही बढ़ चुकी है. जब मिडिल ईस्ट पर चढ़ाई की अमेरिका ने अपने डेलिब्रेट साजिश के तहत न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के रूप में और नया निज़ाम लाने के लिए, तो इस पर रशिया ने ईरान की हेल्प करते हुए बशर अल असद के रिजीम को बचाने के लिए रशिया ने काफ़ी सपोर्ट किया, और वहाँ पर अमेरिका समेत तमाम मगरबी ममालिक और सऊदी अरबिया और मिडिल ईस्ट के बहुत सारे खलीजी ममालिक ने इसमें अरबों डॉलर खर्च किए, मगर बशर की हुकूमत को गिरने नहीं दिया. यूँ ईरान और रशिया के अलायंस बढ़ता गया और ईरान की प्रॉक्सीज को काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई, और वहाँ से बशर अल असद जो सीरिया है वो स्ट्रेटेजिक समझा जाता है इम्परेटिव्स में ईरान की हिजबुल्लाह तक रसाई पहुंचाने के लिए. और बशर अल असद डिस्पाइट utmost enmity from across the globe, he is standing just like a solid rock. और ईरान के ऊपर ये बताया जा रहा है आजकल के ईरान के जो ड्रोन्स हैं वो काफ़ी मौलिक एडवांस है और वो रशिया यूज़ कर रहे हैं, और इसके सामने जो यूक्रेन के जो वेपन्स हैं जो नेटो अलायंस से लिए वो सारे दे आर प्रूविंग टू बी फ्यूटाइल टू स्टॉप the Iranian Kamazoki drones, which is very sensitive and they easily pass the radar system. So इस हवाले से हम बात कर लेंगे, और सेकेंडली हम ये एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे इन तमाम ड्रोन स्किरमिशेस से, तमाम साइबर अटैक्स, ये चीज़ें किसने इनिशिएट किया, आगाज़ किसने किया, और अब भी इसको फ्यूल कौन कर रहे हैं, और इसको कर्व करने में इंटरनेशनल जो वॉच डॉग्स है, इंस्टीट्यूशंस है, ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस है, वो खामोश क्यों है, और जो वीमेंस वायलेशन जो इराक में, अफगानिस्तान में औरतों को बेचा जा रहा है, इसके बारे में अमेरिका में कोई प्रोटेस्ट नहीं होते, ये ऐसा क्यों है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो टुवर्ड द हेडलाइंस. वॉशिंगटन पोस्ट को मैं बताऊंगा, डेस्परेट फॉर एलाइज, रशिया कल्टिवेट्स टाइज विद ईरान एंड सऊदी अरेबिया.
अब मसला ये बन चुका है अमेरिका के लिए, पहले रशिया सऊदी अरबी का अमेरिका ने काफ़ी यूज़ किया अपने मकासद को अचीव करने के लिए। राइट नो Saudi Arabians are also turning back to American interests because the doctrine between Joe Biden administration and bin Salman, you can say, are temporary contrary to each other. As per the Western media, the Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, Mohammed bin Salman does not want to see the Biden administration into the authority anymore. So he is doing it deliberately to empower Russia by, curbing its oil, and the price are gaining, the oil price is gaining sky high, so that Joe Biden's administration could come under pressure, and his political campaigns would be under severe pressure, and it would defame his campaigns in upcoming presidential election as well. तो इस हवाले से जो उनके ताल्लुकात भी ख़राब है, और ये उन वाशिंगटन पोस्ट का कहना है कि रशिया डेस्परेट है, इस हवाले से वो सऊदी अरबिया और ईरान के साथ कुर्बतें बढ़ा रही है। रशिया इज ट्राइंग यूजिंग Iranian manufactured kamikaze drones to attack Ukraine, including a central key where debris was left outside a damaged apartment building Levine for the Washington Post. उनका कहना है कि वहाँ पर बहुत भयानक सूरत हाल है। ईरानियन जो ड्रोन इस्तेमाल कर वो सिविलियन को एक कैजुअलिटीज़ का सबब बन रहे हैं, और रशिया के ऊपर जो सैंक्शन है इसको मज़ीद सख्त करने की ज़रूरत है। और मजीद कहना था, मॉस्को is using to kill Ukrainian and to destroy Ukrainian infrastructure are manufactured and supplied by Iran. We all know that the drones are Iranian. Ruslan Pokhao, a military expert close to Iranian defense military, told the anchors, clearly unaware they are providing by Iran to kill the civilians. अगर हम बात कर ले ईरान और रशिया के बीच में, तो रशिया ने ईरान ने रशिया को जो ड्रोन का बल्स दिया है, ईरान के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि हमने ड्यूरिंग द वॉर हमने नहीं दिया, ये हमारे ट्रीटी चल रहा था, इससे पहले हमने ड्रिल किया ड्रोन के हवाले से। ईरान ने हमारे ऑडियंस को एजुकेट करता चले कि इससे पहले ईरान ने अपने एक मैसिव जो अंडरग्राउंड एक ड्रोन सिटी को अनवील किया। ईरान के ऊपर रिवोल्यूशन से लेकर अब तक ईरान के ऊपर काफ़ी इश्यूज आए हैं, सैंक्शंस आए हैं, ईरान के ऊपर वॉर आयद किया, ईरान इराक वॉर हुआ, सद्दाम को फ्यूल किया, इवन उनके ऊपर केमिकल्स अटैक किए गए। इसलिए ईरान ने अपने आप डिफेंस जो सिस्टम है उनका, उसको काफ़ी उन्होंने बूस्ट अप किया, और रीजन में वो काफ़ी पावर गेन कर चुका है। ईरान के साथ अब टाकरा लेना, अमेरिका भी रीथिंक कर रहे हैं कि ईरान के साथ अगर टक्कर मारेंगे तो क्या होगा, क्योंकि इसके पास एक वसी फौज ऑलरेडी है, इनकलाबी फोर्स, बसीज, इसके अलावा बहुत सारे हैं। इसके अलावा प्रॉक्सी जो उनकी पूरी दुनिया में घेरे, दुनिया के कोने कोने में बसे हुए हैं, उनके ज़रिए वो किसी भी तरह से अमेरिका को लायक सूरत हाल पैदा कर सकती है। और सेकेंडली ईरान का कहना है कि हम अपने पर्शियन गल्फ को बचाना चाहते हैं, जो साउथर्न जो वाटर रीजन है उसको दुश्मन की शर से हम बचाना चाहते हैं। रिसेंटली ये जब जो बाइडन आया तो ईरान ने अपना एक जो सबमरीन वगैरह एग्जिबिट किया, वहाँ पर ओशन में छोड़े, पर्शियन गल्फ में छोड़े, उनसे उन्होंने जो ड्रोन्स थे, जो एरियल ड्रोन्स थे, उनके ज़रिए उन्होंने मिज़िल दागा और वहाँ पर ड्रिल्स के ज़रिए और जो अपने स्पेसिफिक जो टारगेट है उनको अचीव कर लिया। और उनका मैसेज देना कि ईरान अब पहले वाले ईरान नहीं है, अब हम हर चीज़ से लेस हो चुके हैं, वो भी विद इन द कंट्री हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एक दुनिया में चीज़ें काफ़ी शिफ्ट हो रहे हैं, और अब ताकत का पलड़ा अमेरिका से हट कर दूसरे पावर्स की तरफ जा रहे हैं। चाइना इज टू बी द वर्ल्ड पावर, वर्ल्ड सुपर पावर बाय 2045। तो ये जो अलायंस बन रहे हैं ईरान, रशिया, चाइना की, वो अमेरिका को काफ़ी एक खटक रहा है। इस वजह से अमेरिका अनरेस्ट पैदा करना चाहते हैं एशिया में, और ख़ुसूसन जो पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान और ईरान के जो बॉर्डर है वहाँ पर स्किर्मिशेस पैदा करना चाहते हैं, और ख़ित्ते में वो अनरेस्ट पैदा करना चाहते हैं, ताकि जो अभी देखिए ईरान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उससे जो उनके जो तंजीमें थी वहाँ पर उनके सूबा बलूचिस्तान के अंदर वो एक्टिवेट हो गए, वहाँ पर उनकी मस्जिद में धमाका कर लिया। और रिसेंटली वो यहाँ पर जो पाकिस्तान और ईरान के जो सरहद पर भी फिर से मिलिट्री जो बैंड तंजीमें उसको फाल करना चाहते हैं, ताकि ये एक अनरेस्ट पैदा हो। अनरेस्ट पैदा होने की वजह से दहशतगर्दी फिर बहाल होने से क्या होगा कि ईरान के जो चाबहार जो पोर्ट बनने जा रहे हैं वो अनसेफ शुमार होगा, और वहाँ से चाइना और ईरान के बीच में जो $420 बिलियन का जो खर्चा वहाँ
पर होने जा रहे इन्वेस्टमेंट उसको रोका जाए, और सी पैक भी इसके जद में आए, बलूचिस्तान वाले रीजन में टेररिस्ट जो आउटफिट्स हैं उनको एक्टिवेट किया जाए। तो उनके बड़े वसी पैमाने पर ये चीज़ें करने के लिए उतर आए हैं। ऐसे में जब कोई कंट्री अपने प्रोटेक्शन के लिए कोई आर्सेनल बनाए तो उसको वो सेंक्शन लगाने की कोशिश करते हैं। एंड फॉर द आयरनी इज दैट these countries possess thousands of nuclear warheads, advanced and sophisticated missile systems, aerial defense system, but they they pose very silly when they intervene in another country's sovereignty, and they invade and they plunder the wealth of the other countries. They only get vibrant when any country try to stand up on their own feet. America has always been pursuing to dominate the entire world, but right now their policies, their strategies have been elusive and proved futile against the soft power pursued by China, Russia and Iran. It's going to be very crucial. मैं फोर्ब्स को बताऊंगा, ईरान में होप टू रेप्लिकेट टर्की सक्सेस एक्सपोर्टिंग ड्रोन्स। ईरान को अब दुनिया भर से ड्रोन की पैदावार जो बढ़ाया है उन्होंने उन्हीं, और जो उसकी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है जो अपने निशाने को ठीक निशाने पे मारते हैं और जो रडार के सिस्टम से बच के भी निकलते हैं, और अमेरिकन तमाम जो वेपनरी वो यूज़ कर रहे थे नेटो के जरिए यूक्रेन को, वो फ्यूटाइल साबित हुए हैं। तो इसलिए ईरान अपने ड्रोन को जो उनकी डिमांड है वो बढ़ चुकी है पूरे दुनिया से, उनके लिए वो इसकी खेप की डिमांड आ रही है। तो ईरान का कहना है कि हमारा ये उसूल है कि हम अपने नेबरिंग कंट्री से या हमारे दोस्त से, एलाई से हम उनको ये ड्रोन प्रोवाइड करेंगे। दुनिया की कोई पावर हमें इससे नहीं रोक सकते। ईरान स्लेम्स कॉल फॉर द यूएन प्रोब इनटू एलिट यूज ऑफ इट्स ड्रोन। अलजजीरा कहते हैं जो यूएन और यूनाइटेड नेशंस और जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस की बात की, तो ईरान ने उसको स्लेम करते हुए बताया कि ये कि उन्हें हक नहीं पहुंचता कि वो किसी दूसरे की दाखिली उमूर में बात कर लें। द फॉरेन स्पोक्समैन सेज कॉल फॉर अ प्रोब इनटू द यूज ऑफ alleged Iranian origin drones in Ukraine is false and baseless. उनका कहना है कि ईरानी जो ड्रोन वहाँ पर जो यूज़ है उसके बात करना एक बेसलेस है, जब तक कोई शवाहिद ना हो अमेरिका को ऐसी बात नहीं करना चाहिए। तो हम बताएंगे कि वाई ड्रोन्स आर बिकमिंग ईरान स्वीपर ऑफ शॉट। दुनिया में जो जंग की जो टेक्टिक है वो बदल चुकी है। द हार्ड वॉरफेयर हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म इनटू सॉफ्ट वॉरफेयर जस्ट लाइक साइबर अटैक्स, एंड यू कैन से द यूज ऑफ एरियल ड्रोन्स and hacking. These are the systems which have become much fatal for the countries who are less privileged and very vulnerable to the such sort of invasions. तो इस हवाले से जो कंट्री सेल्फ रिलायंस की बेस पर बुनियाद है और उनके लिए काफ़ी जो डोमिनेट जो वर्ल्ड पावर है उसको प्रेशराइज करते ताकि अपने सब्जुगेट रहे। और रशिया ने काफ़ी हद तक यूक्रेन के अंदर अपने टेरिटरी से जो 4 रीजन, डोम्बास के अलावा जो 4 रीजन है उनको कब्जा कर लिया और रेफरेंडम का ऐलान करके उन्होंने इसको रेड जोन करार दिया है और उन पे मार्शल लॉ भी नाफिज कर लिया है। नेटो के जो अलायंस काफ़ी फ्यूटाइल साबित हो रहे हैं, और वहाँ पर कल भी सिविलियन काफ़ी यूक्रेनियन क्रश हुए, डेथ हुए, और वो मसालहत की मेज़ पर बिल्कुल आने के लिए तैयार है। मगर प्यूटिन ने अपना हिकमत अमली कंप्लीट कर लिया और उसने अपने जो अहदाफ थे उसको परस्यू कर लिया। उनका कहना है अगर हमें और एक देशन की तरफ बढ़ा देते हैं तो ऑब्वियसली नेटो से हमें रिजर्वेशन है, हम आगे बढ़ेंगे। इंशाल्लाह आई विल बी ब्रिंगिंग मोर फैक्ट्स एंड रियलिटीज विथ यू, एंड वी विल ऑल्सो टॉक द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सेशन, द चाइनीज रोल देन एंड द इंक्रीजिंग टाइज बिटवीन रशिया, ईरान एंड Russia, Iran and China in upcoming session. You are requested to join my channel and आपसे गुजारिश है कि आप हमारी जो न्यू ऑडियंस है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मसला खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। टेक केयर।